Hi viewers, welcome to testyourprep.com. In this video, I would be discussing up the basic concept of ratios and proportions. Kuch definitions, how to calculate ratio and all, I'll be doing that. So let us understand the concept using the questions. Up, my first question is, find the third proportion to the number. Find the third proportion to the number 36 and 72. What do you mean by third proportion? If I say A, B, C are in proportion, then C is called your third proportion and B is called your second या फिर mean proportion. A, B, C are in proportion, then C is called third proportion, B is called mean proportion. Now what do you mean by proportion? By proportion I mean that the ratio of B by A should be equals to C by B. The ratio of B by A should be equals to C by B. So let us understand its application in the question. We have to find the third proportion, that is 36, 72 और उसके बाद क्या होगा C. 36, 72 और उसके बाद क्या होगा C. तो यहाँ पे I know that this is my A, this is my B and this is my C. So B by A should be equals to C by B. I have to calculate C. So putting up the values, 72 by 36 should be equals to C by 72. तो यहाँ पे कटिंग हो गई 2 से, तो मेरे पास C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 into 2. So C becomes what? 144. C becomes what? 144. I hope सबको थर्ड proportion और सेकंड proportion क्लियर हो गया होगा क्या होता है. Once clear, then move on to the next question. My next question says that find the fourth proportion to the number 7, 14 and 5. 7, 14 and 5. Now if I say A, B, C, D are in proportion. A, B, C, D are in proportion, then D is called fourth proportion. D is called fourth proportion. तो proportion का मतलब इस केस में क्या होगा? B by A should be equals to D by C. B by A should be equals to D by C. तो यहाँ पे in this question I have to find the fourth proportion, that is 7, 14, 5. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? D. This is my A, this is my B, this is my C and this is my D. So this becomes B by A should be equals to D by C. तो 14 by 7 should be equals to D by 5. 14 by 7 should be equals to D by 5. तो यहाँ पे कटिंग हो गई 2 से, so D की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 10. Hence my fourth proportion is 10. My fourth proportion is 10. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको fourth proportion समझाया. Once it is clear, then move on to the next question. My next question says that find the mean value. अब याद करिए डेफिनेशन 1 में मैंने आपको समझाया व्हाट इज मीन वैल्यू. ए बी सी अगर प्रपोर्शन में है तो बी को मैं क्या कहता हूं? सेकेंड या फिर मीन प्रपोर्शन. सेकेंड या फिर मीन प्रपोर्शन. सो ओवर हेयर आई हैव टू फाइंड द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू का मतलब मीन प्रपोर्शन. सो लेट अस से द नंबर इज बी. सो 26 बी 49. तो यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस विल बिकम व्हाट? बी बाय 26 should be equals to 49 by B. So cross multiplying B square is equals to 26 into 49. तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे. So this will become 26 times 49 का रूट. So B will be given by 7 root 26. B will be given by 7 root 26. I hope सबको मीन प्रपोर्शन क्लियर हो गया होगा. Once it is clear, then move on to the next question. My next question says that if A ratio B is equals to 3 ratio 4 and B ratio C is equals to 5 ratio 7, then find A ratio B ratio C. A ratio B ratio C. तो यहाँ पे हम शॉर्टकट ही सीखेंगे डायरेक्ट क्योंकि हमें एप्लीकेट यूज में करना है. हाउ डू वी फाइंड कंपाउंडेड रेशो? कंपाउंडेड रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, मैं A रेशो B लिख रहा हूँ और B के ऊपर B लिख के B रेशो C लिख रहा हूँ. आई रिपीट, A रेशो B लिखा और B के ऊपर B लिख के B रेशो C लिख दिया. तो सिमिलरली हम इनकी वैल्यूज़ के लिए भी यही करें. 3 रेशो 4, 5 रेशो 7. तो सबसे पहले लेट अस मल्टीप्लाई AB. So 3 into 5 would give me 15. 3 into 5 would give me 15.
नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई दिस, सो 5 into 4 विल गिव मी 20, और उससे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई दिस, सो 4 into 7 विल गिव मी 28. तो हेंस मेरा जो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा दैट वुड बी 15:20:28. अब इसके अंदर फर्दर कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या हो गया, 15:20:28. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू कंबाइन द रेशोज. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या दिया है, A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D, और क्या कहा है A रेशो B रेशो C रेशो D निकालिए. A रेशो B रेशो C रेशो D निकालिए. तो सबसे पहले A रेशो B और B रेशो C से हम A रेशो B रेशो C निकालेंगे यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज A रेशो B, B के ऊपर B, B रेशो C. सो दिस वुड बी गिवन बाय 1:4, 3:2. सो मल्टीप्लाइंग दिस 1 into 3 would be given by 3. Then multiplying this 3 into 4. 3 into 4 would be given by 12. Then B ratio C 4 into 2 would be given by 8. तो यहाँ से आप देख सकते हैं A ratio B ratio C is becoming 3:12:8. 3:12:8. Now over here we will be finding A ratio B ratio C with C रेशो D. तो इसके लिए भी लेटेस्ट पुट दी वैल्यूज जो आई हैं हमारे पास 3:12:8 अपॉन 5:6. सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस. 3 into 5 will give me 15. Then B into C 12 into 5 will give me 60. Then C into C 5 into 8 will give me 40. Then C रेशो D 8 into 6 will give me 48. तो मेरे पास जो रेशो आ रहा है दैट इज दिस. अब इसके अंदर से कुछ कॉमन नहीं ले सकता हूं. इफ आई कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन दिस विल बी माई रिक्वायर्ड रेशो, दैट इज A रेशो B रेशो C रेशो D. आई होप गाइस सबको क्लियर हो गया है कि कंपाउंडिंग कैसे करनी है. इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत जगह आपकी कैलकुलेशंस को सेव करेगा. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question says that the sum of two numbers is 700. Sum of two numbers is 700. If the ratio between first and second is 2 and 3, find the result of first and second number. Find the value of first and second number. तो इसको करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि जो रेशो दे रखी है वो रेशो दे रखी है आपको 2:3. तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x, सेकेंड नंबर बी 3x. तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है 700, क्योंकि यहाँ पे सम दिया हुआ है. तो लेट अस पुट 2x प्लस 3x इक्वल टू 700. तो 5x इक्वल टू 700. सो x वुड बी 140. x would be 140. Putting this x back over here, my numbers would become, my first number would be 2 into 140 is equals to 280. Second number 3 into 140 would be equal to 520. आप चेक कर सकते हैं दोनों नंबर्स का जो सम आ रहा है that is 700. That is, sorry, this would be 420. Over here it is 420. So दोनों नंबर्स का सम कितना आ रहा है मेरे पास 700. आई होप सबको ये अलजेब्रा वाला मेथड क्लियर हो गया होगा. अब इसी को करने का एक और तरीका है मेरे पास जो हम नॉर्मली एप्टीट्यूड में एप्लीकेट करते हैं. मैं कहता हूँ लेट दी फर्स्ट नंबर बी 2 एंड सेकेंड नंबर बी 3. मैंने नंबर को 2 और 3 ही मान लिया. तो उस केस में टोटल कितना आ जाएगा मेरा 2 और 3 का टोटल कितना हो गया 5. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर 5 टोटल है तो उसमें से फर्स्ट नंबर क्या है, उसमें से फर्स्ट नंबर क्या है 2. तो 700 में से कितना होगा इंटू 700. सो कटिंग करें यहाँ पे 140. तो कितना आ गया आपके पास 280. सिमिलरली सेकेंड नंबर कितना है आपके पास 5 में से 3. तो 700 में से कितना होगा 5 into 140. दिस वुड बिकम 420. आप देख सकते हैं आप इस मेथड के थ्रू भी अपना फर्स्ट और सेकंड शेयर निकाल सकते हैं. फॉर बेसिक मैथमेटिक्स पर्पल वाला मेथड ठीक है. फॉर हमारा जो एप्टीट्यूड है उसके लिए हमारा येलो वाला मेथड ठीक है. काइंडली इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करिए. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question says that
an amount of 280 is distributed among A, B, C in the ratio 2:5:7. ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या दे दिया 2:5:7. What is the difference between the shares of B and A? हमें B और A के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो अगेन गोइंग बाय द इक्वेशन मेथड, लेट A be 2x, B be 3x एंड C be 7x. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2x plus 3x plus 7x equal to 280. So this should be 5 plus 7, 12x. 12x is equals to 280. So x की value becomes what? 280 by 12. It becomes 280 by 12. तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे अगर हम कटिंग करें so this will become what? 237 would give me, sorry it was 5 over here, तो यहाँ पे 5 है. So 2 plus 5, 14 will be over here. So this will be 14. So x becomes what? 20. Putting the value back in A, B and C. So A will become 40, B will become 100 and C will become 140. So from here B minus A का difference, B is 100, A is 40. My answer should be what? 60. My answer should be what? 60. तो यहीं पे व्यूअर्स मैं आपको एक शॉर्टकट और सिखा रहा हूँ कि अगर मैं एप्टीट्यूड में करूँगा तो मैं कैसे करूँगा. तो लेट ए बी सी बी वॉट, ए बी 2, बी बी 5 एंड सी बी 7. तो इस केस में मेरा टोटल कितना हो जाएगा, इट वुड बी 14. तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी. तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में आ रहा है डिफरेंस 3. तो अगर टोटल 14 है तो उसमें से मेरा डिफरेंस है 3. तो 280 में से कितना हो जाएगा into 280. So cutting this, so this will become what? 60. This will become what? 60. I hope सबको शॉर्टकट भी क्लियर हो गया होगा. इनके जो येलो वाला शॉर्टकट है इनके ऊपर हमारे और भी वीडियोस बने हुए हैं, आप उसके अंदर से देख के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कर सकते हैं. बट अभी के लिए पर्पल वाला मेथड समझना बहुत ज़रूरी है. काइंडली नोट द सोल्यूशन. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question says that a bag contains equal number, अब equal number of 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा coins. If the total value is 40, अब total value किसकी है जी, रुपयों में total value कितनी है 40. तो how many coins of each type are there, कितने coins हैं हर टाइप के. लेट अस से मैं कहता हूँ XX coins हैं मेरे पास सारी चीज़ों के, XX coins हैं सारी चीज़ों के. अब 50 पैसा का एक कॉइन would be 0.50 रुपीज़, एक कॉइन would be 0.50 रुपीज़. मैं पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 100 कर दूंगा. तो x कॉइन्स would be 0.50 into x. सिमिलरली 25 पैसा कॉइन would be 0.25 in रुपीज़. तो x कॉइन से कितने रुपए बन गए 0.25x. अगले केस में 20 पैसा, सो दिस विल बिकम 0.20x. और उसके अगले केस में 5 पैसा, दिस विल बिकम 0.05x. तो टोटल रुपए जो मिलाकर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 40. टोटल रुपए जो मिलाकर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 40. सो इफ आई ऐड देम दिस विल बिकम व्हाट 0.75, 0.95 प्लस दिस इज 1x इज इक्वल्स टू 40. तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40. हेंस आप देख सकते हैं कि मेरे पास हर एक टाइप का कॉइन कितना है 40. हर एक टाइप के कॉइन्स मेरे पास बन रहे हैं. आई होप सबको बेसिक मेथड क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और इस क्वेश्चन को करने का एक और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मेथड है, बट फॉर द स्कोप ऑफ वीडियो वो मैं चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसमें बेसिक मेथड सीखना है. आई होप व्यूअर्स आपको क्लियर हो गया है कि रेशियो प्रोपोर्शन में हम रेशियोज कैसे निकालते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ को कैसे डिवाइड करते हैं. इसकी प्रैक्टिस आप अगेन अपने इक्वेशन मेकिंग से अच्छे से कर सकते हैं. एजिस में काफ़ी एप्लीकेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी एप्लीकेशन है, रेशियो में, पार्टनरशिप में, एलिगेशंस में, इन 3-4 यूनिट्स के अंदर भी इस टॉपिक की एप्लीकेशन होती है. तो आप लोग इसके अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. वंस इट इज़ क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic. So keep on learning, keep on watching. Thank you.